हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14.7 ऑफ ऑसिलेशन चैप्टर. लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन स्टेट्स. A block whose mass is 1 kilogram. We have a block or a box whose mass is 1 kilogram is fastened to a spring, which is fastened to a spring. A block is fastened to a spring whose mass is 1 kilogram. The spring has spring constant 15 Newton per meter, and the spring constant of that spring is 15 Newton per meter. The block is pulled to a distance. We have the box is attached to a string, and we pull that string to x is equal to a distance of x is equal to 10 centimeter from its equilibrium position at x is equal to 0. इसकी equilibrium position से from rest at t equals to 0 और from rest से जब time equal to 0 था. Calculate its kinetic energy, potential energy, total energy of the block when it is 5 centimeter away from the mean position. जब ये 5 सेंटीमीटर दूर था इसकी mean position से. आइए हम we will try to solve it out with a diagram. Then the whole statement will be clear to us what it states. Okay, see, we have a spring which is attached to a box of mass m equals to 1 kilogram, and spring constant is k, which is 15 Newton per meter. Okay, we have stretched this, we have pulled this box to 10 centimeter, means till here. We have stretched this box. Now when it is coming back to the 5 centimeter, means somewhere here, when we leave it after pulling it, then somewhere at 5 centimeter at this position we need to calculate its kinetic energy, its potential energy and total energy. It means, so let's see, till now we have understood what the velocity is, what the displacement is, and what the acceleration is of simple harmonic motion. But we are not aware how to calculate kinetic energy of a simple harmonic motion, potential energy of a simple harmonic motion, and total energy of a simple harmonic motion. So we have to find out a formula to calculate these, and we have just the formula of displacement, velocity and acceleration. So it will be a bit easy for us to calculate the kinetic energy. How it is easy? Let's see. The formula of kinetic energy half mv square, and this is kinetic energy formula for a simple motion, for any kind of motion. But here the motion is simple harmonic motion, and we have to derive the formula of kinetic energy for simple harmonic motion. We have calculated velocity of a particle oscillating in a simple harmonic motion, and the formula is v equals to minus omega a sin omega t plus phi. If we put this v here, we will be with the formula of kinetic energy of a simple harmonic motion. Let's do this. One by 2 m omega square a square sin square omega t plus 5. This is the formula for kinetic energy of a simple harmonic motion, and what the simple harmonic motion we have stated in the earlier questions. So now we need to calculate the potential energy. Potential energy of what? Potential energy of simple harmonic motion. Here we have the formula of potential energy, velocity. In case of kinetic energy,
but when we assume potential energy we do not have any such kind of formula. The first difficulty in potential energy formula is the formula of potential energy is valid for only conservative forces. When there are conservative forces and we apply force or we do work done against this conservative force, then that work done is stored as a potential energy. So what the difficulty with us? We are calculating potential energy of a simple harmonic motion. So we must have a particle which is showing simple harmonic motion, and it is also the force which showing simple harmonic motion should be conservative. So what are those motions which are showing both property? One is conservative forces, and second one is that is showing simple harmonic motion. Then only we will able to calculate this potential energy. My mean to say that is हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी तभी निकलती है जब कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहे हो, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में हम अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स हमारा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि एक तो हमारे मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो और दूसरे जो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, उस केस के लिए हमारे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है फॉर्मूला फॉर ए स्प्रिंग. बिकॉज हमारा स्प्रिंग क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, और इसकी जो मोशन होती है वो कंजर्वेटिव होती है. क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक पाथ में वर्क डन फॉर ए स्प्रिंग क्या होता है, 0. जब हम एक साइक्लिक पाथ में इसका वर्क डन निकालते हैं स्प्रिंग का, तो वो हमारा 0 आता है. तो हमारा स्प्रिंग क्या शो करता है, कंजर्वेटिव मोशन और एज वेल एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो अब देखते हैं फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा. हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जैसे हुक्स ने हमें दिया था F equals to kx. kx is for applied force. If it is the restoring force then it will be minus kx. So अगर हमें यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है एक स्प्रिंग में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स भी शो करता है. क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जो मोशन होती है वो इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती. इसकी मोशन, इसका फोर्स, इसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है. तो इस हम स्प्रिंग के केस में ही हम निकाल पाएंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये दोनों केस एक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है जो हमें चाहिए, और दूसरा हमारा ये कंजर्वेशन भी शो कर रहा है. तो हमारा फोर्स है kx. अगर हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं xm डिस्प्लेसमेंट पे, तो हमारा वर्क डन, ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वर्क डन हुआ. वर्क डन स्टोर्ड अगेंस्ट द फोर्स दैट विल बी काइनेटिक आवर पोटेंशियल एनर्जी. So it will be kx square by 2. So हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, kx square by 2 for a spring. जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम U से डिनोट करते हैं, अगर हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, जो हमारा वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. और यही हमने स्प्रिंग के अगेंस्ट फोर्स लगाया है, एक डिस्प्लेसमेंट हमने dx किया है,
जीरो से लेके एक्सएम तक हमने उसको इंटीग्रेट किया, मीन्स हमने उसको एक्सएम डिस्प्लेसमेंट तक हमने उसको डिस्प्लेस किया है। ओके, और जो फोर्स उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, उसके अंदर जो वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तो हमारा किसको शो करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा होगी पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारा एक्स है, और एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पहले ही डिफाइन कर रखा है, जो हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, k/2 x होता है हमारा a cos ओमेगा t प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाल लिया। किस केस के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब हमें क्वेश्चन से वैल्यू निकाल के इन फॉर्मूलाज में पुट करनी है, जिससे हम आंसर हमारा मिल जाएगा। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने पहले निकाल लिया है इसको। अब हम इन फॉर्मूलेज की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है, इस स्प्रिंग को हमने 10 सेंटीमीटर इस बॉक्स को हमने 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया है, whose mass is 1 kilogram, and when we release it, when it is at 5 centimeter from its initial mean position, somewhere here, then we have to calculate its kinetic energy, potential energy, and then total energy. So सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.05 मीटर। और हमारे पास एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। इफ वी कन्वर्ट इट इन मीटर, इट विल बी 0.1 मीटर। सो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। एट 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट के लिए a cos ओमेगा t प्लस 5 को भी नेग्लेक्टेड दैट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0.05 मीटर एंड द एम्पलीट्यूड इज 0.1 मीटर। cos ओमेगा t, we have to calculate the omega means angular frequency of this box when it has released from here and at the point 5 centimeter from the initial position. Omega is under root k by m. We have find out it earlier. So it is the formula k equals to m omega square. The formula constant, and from that we have derived it. We have molded it. So it will be k is 50 Newton per second, mass is Newton per meter, and mass is 1 kilogram. So omega is equals to 7.07 रेडियन पर सेकेंड, 7.07। सो हमारी ओमेगा क्या होगा, 0.05 0.1 cos 7.07 t। यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, cos 7.07 t। cos 7.07 t equals to 0.05 upon 0.1. It will be 5/10, 0.5 और 1/2। हमारा ये cos थीटा है। जब हमारे cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो उस टाइम पे हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, √3/2। उसी एंगल पे √3/2, जो वैल्यू हमारी साइन 45 पे, साइन 30 पे होगी, cos 30 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी साइन 60 की होगी।
इस केस में हमारा जो थीटा, इसलिए हमने 1/2 की जगह √3/2 है टेकन हेयर। सो ये हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी के हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन ओमेगा, सॉरी ओमेगा हमारे पास 7.07 t, इसलिए हमने कोस से साइन में निकाला था ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सके। ये हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, इट विल बी 7.07, इट इज 0.1 मीटर एम्पलीट्यूड था जो, और ये साइन 7.07 t इट इज इक्वल टू √3/2। √3/2 हमारा है 0.866 होता है। ओके, तो हम इसको 0.866 रख देते हैं, तो हमारी वेलोसिटी आएगी 0.61 मीटर पर सेकंड। तो हमारी वेलोसिटी आएगी। अब यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान हो जाएगा। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये कहाँ निकाल रहे हैं हम, 0.5 सेंटीमीटर पे। जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था वो 0.5 मीटर लिया था, उसी से हमने ये साइन ओमेगा टी निकाला है जो 0.866 है। सो हाफ एम हमारा क्या है 1 kg, और v स्क्वायर 0.61 इंटू 0.61। हम इस फॉर्मूले को v की जगह इस vt को रख के और फिर भी वैल्यू रख सकते थे, बट हमने पहले इसको सॉर्ट आउट करके फिर रख लिया ताकि स्टेप्स इजी हो जाएं। सो हमारी काइनेटिक एनर्जी, इसको हम सॉल्व आउट करने पे हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी 0.19। ओके, अब हम निकाल लेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या, हाफ kx²। हमें फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग हमने x की जगह पे जो हमारा सिंपल हार्मोनिक केस मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट था उसको रखा था, बट इन दिस केस हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो वी कैन पुट द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली हियर टू नो द आंसर, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0.05 मीटर। k is 50 मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर, सॉरी। x है हमारा डिस्प्लेसमेंट है 5 सेंटीमीटर था, 0.05 मीटर होगा क्योंकि हमने जो k है कांस्टेंट था वो हमारा न्यूटन पर मीटर में है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू 0.0625 जूल। और हमारी टोटल एनर्जी हमें निकालनी है। हमारी टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमारी काइनेटिक एनर्जी 0.19 जूल प्लस इट इज 0.0625 जूल, एंड इट विल बी इक्वल टू 0.25 जूल। So friends, this is the answer of this question. Thanks a lot.